Welcome in Aswani classes polynomial part 5. In this part we are going to discuss a very important results, relation between roots and coefficients of a polynomial. In the previous part we have discussed in detail about polynomial, zeros of a polynomial, graph of a polynomial, degrees of a polynomial. These things have been discussed in the previous part. Let us see what does it means relation between roots and coefficient. Two things I want to tell you first of all. Number one, if fx is a polynomial 2x plus 3, then x equal to minus 3 by 2 is its what? Zeros. You have read what does it mean zeros of a polynomial in the previous video. So here x minus 3 is its zeros, means if you find its value by taking x equal to minus 3 by 2, its value will come 0. If you write here minus 3 by 2, 2 to cancel, minus 3 plus 3 0. So it is called 0 and this is called a polynomial. Now if you write fx equal to 0 or fx equal to 0 means 2x plus 3 equal to 0. Now this is called an equation. This was polynomial. Now this becomes equation, polynomial equation or simply equation. Okay. This was a linear polynomial. This is called linear equation. And x equal to minus 3 by 2 is called now रूट्स. अब इसको हम लोग वो जो जीरोस बोलते थे ना, जीरो के जगह पर रूट्स, रूट्स और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, जीरोस और रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2. सो अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन दिस रूट. रूट मतलब वही जीरोज को ही जब ये इक्वेशन बन जाएगा तो उसको हम लोग रूट्स बोलेंगे, रूट्स या सॉल्यूशन भी बोलते हैं, राइट. सेकेंडली, इफ देयर इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 is a polynomial, how many roots will come? It's degree 3, so number of roots will come 3. We were saying number of real roots, maximum number of real roots will be 3. Its number of roots may be 3 or less. 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम 3. तो जो मैक्सिमम 3 बोलते थे, मैक्सिमम 3 मीन्स मैक्सिमम 3 रियल रूट्स. देयर मे बी इमेजिनरी रूट्स. टोटल मिला के 3 रूट्स होगा. डिग्री 3 है तो रूट्स 3 होंगे. इमेजिनरी रूट्स 1 मिनट देख लीजिए आप यहाँ. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड इट्स रूट्स. इसका रूट्स निकालिए, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. व्हाट विल कम? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4. सो एक्स इक्वल टू square root of minus 4. Now what will be square root of minus 4? We know square root of 4 is 2 or minus 2, because 2 square is 4, so square root of 4 is 2. Okay. Now what will be square root of minus 4? Square root of minus 4 means you have to search a number whose square is minus 4. Is there any square whose square is minus 4? No. 2 square is 4, minus 2 square is also plus 4, minus 4 will not come. So square root of minus 4 is not a real number, although it is root of this equation. इस equation का root तो है लेकिन ये real number नहीं है. It is called imaginary roots. Square root of negative numbers are called imaginary roots. Okay, so roots may be real, may be imaginary. So here in class 10 we are reading only about real roots. Imaginary roots को हम लोग यहाँ consider नहीं कर रहे हैं.
इसलिए जैसे क्यूबिक इक्वेशन का कहीं मैक्सिमम 3 आया, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, माने एक रियल हुआ, बाकी 2 इमेजिनरी। अगर एक रूट आया ना तो बाकी 2 इमेजिनरी होगा, 2 रियल रूट आया तो एक जो और बचा वो इमेजिनरी है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। रिगार्डिंग इमेजिनरी रूट्स वी डिस्कस इन डिटेल इन क्लास 11। तो अभी चूंकि सिर्फ रियल का बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम रियल रूट्स, मैक्सिमम रियल रूट्स 3 रूट्स आना है, तो मैक्सिमम रियल कितना होगा, तीनों रियल होगा तो 3 होगा, ठीक है। तो आप इतना जानिए कि इफ इट इज ए इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 देयर विल बी 3 रूट्स, रियल और इमेजिनरी वॉट एवर इट मे बी। इफ देयर इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 इट विल हैव 4 रूट्स। 5 डिग्री का है तो 5 रूट्स होगा, 6 डिग्री का है तो 6 रूट्स होगा, nth डिग्री का होने से n रूट्स होगा, ठीक है। ये चीज आपको बताना था। और polynomial, if you write it equal to 0 then it becomes an equation, and when it becomes an equation then zeros are called roots or solution। ये बात आपको समझ में होना चाहिए। Now let us see relation between roots and coefficient means of a polynomial। So we want to take a general polynomial। general polynomial means polynomial of degree n, nth डिग्री का polynomial लिखेंगे और उसमें क्या रिलेशन है वो देखेंगे। अब nth डिग्री का लिख लेंगे तो उसमें फिर सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री अपना लिख सकते हैं उसको। तो पहले जनरल लिखेंगे। जनरल मीन्स सी लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, alpha n are roots of the equation, roots of the equation a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus a3 x to the power n minus 3 a n minus 1 x to the power n minus 1 means x, and last will be a n equal to 0. Earlier also we have written this is a general equation, polynomial equation. If you not write here equal to 0, so here to here this is a general polynomial of degree n. Here highest power of the variable is n, so it is a polynomial of degree n equal to 0 written, so it becomes now equation, or you can say polynomial equation, where what are these a0, a1, an are constants, but a0 not equal to 0। ये पहला वाला 0 मत कीजिए, otherwise it will not be a it will not be an equation of degree n। so is a equation of degree n, डिग्री n है तो इसका n रूट होगा। n रूट हम लोग सपोज किए हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 करके अल्फा n तक n रूट्स हैं इसके, ठीक है। 3 डिग्री का 3 रूट्स होता है, 4 डिग्री का 4 रूट्स, ये nth डिग्री का इक्वेशन लिए हैं तो इसका n रूट होगा। वी हैव सपोज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा n। देन व्हाट विल हैपन, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। नंबर 1 अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऐसे करके सब का सम, ये क्या है, सम ऑफ ऑल द रूट्स, ऑल द n रूट्स, सब का सम, सब का सम को हम लोग लिखेंगे समेशन अल्फा 1।
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा n, ये पूरा सम को हम लोग समेशन अल्फ़ा 1 लिखते हैं। समेशन अल्फ़ा 1 मतलब एक एक करके सबका सम, ठीक है। ये होता है माइनस a1 बाई a0 माइनस कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। जरा देखते जाइए। अब दो का सम, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हो गया, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 हो गया, फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 होगा, ऐसा करके चलेगा। फिर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 तो हो गया है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, देन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4, ऐसा करके चलेगा। उसके बाद फिर अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 होगा, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, ऐसे करके चलेगा। दो का सम का प्रोडक्ट। तो दिस इज रिटन एज समेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ऐसा लिखते हैं। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये जितने रूट्स है ना, ये रूट्स का दो का प्रोडक्ट का सम, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4, इन दिस वे जितना रूट्स हैं सबका दो का प्रोडक्ट का सम को हम लोग लिखते हैं समेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, एक नोटेशन है। और ये आपका होगा प्लस a2 बाई a0, दिस विल बी प्लस a2 बाई a0, ओके। ये क्या होता है, प्लस ए थर्ड कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट, a2 बाई a0। नाउ इफ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ 3, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4, ऐसे करके तीन का प्रोडक्ट का सम, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, समेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ऐसा लिखते हैं। दिस इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा तीन का प्रोडक्ट का सम है ना, तीन का प्रोडक्ट का सम, उसको लिखते हैं समेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। ये तीन का प्रोडक्ट का जो सम है ये होगा आपका माइनस a3 बाई a0, ओके। देखिए फिर से देखिए, एक का सम माइनस सेकेंड कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट, दो का प्रोडक्ट का सम, फिर प्लस a2 बाई a0, तीन का प्रोडक्ट का सम, फिर माइनस a3 बाई a0, चार के प्रोडक्ट का सम, फिर प्लस होगा a4 बाई a0, पांच का प्रोडक्ट का सम, फिर माइनस होगा a5 बाई a0, इस तरह से। लास्ट में क्या होगा कि n का प्रोडक्ट का सम, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसा करके सब प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ, पूरे n का प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे दो का प्रोडक्ट का सम, तीन का प्रोडक्ट का सम, चार का प्रोडक्ट का सम, पांच का प्रोडक्ट का सम, लास्ट में क्या हो जाएगा, सारा n का प्रोडक्ट आ जाएगा, और फिर सम क्या आएगा, तो एक ही हो गया। अब देखिए एक का जो सम है माइनस है, दो का सम प्लस है, तीन का सम फिर माइनस है, चार का सम फिर प्लस होगा, पांच का सम फिर माइनस होगा। ये क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना टर्म है, दिस डिपेंड्स अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म तो n बताएगा ना, तो दिस डिपेंड्स अपॉन n, ओके। तो इफ n इज ऑड देन इट विल बी नेगेटिव, जैसे एक वाला का नेगेटिव आया है, तीन वाला का नेगेटिव आ रहा है, पांच वाला का नेगेटिव होगा, तो ये डिपेंड करेगा n के ऊपर, इसका साइन -1 टू द पावर n, और ये होगा आपका an बाई a0, an बाई कांस्टेंट टर्म, ओके। सो
जस्ट ए मिनट, ये डोर को बंद कर देते हैं, बारिश में आवाज आती है, जस्ट 1 now I think sound is not coming. See, this will depends upon n minus 1 to the power n an by a0. Suppose n is 5, then here 5 terms will come, and odd, so minus 1 to the power 5, then automatically this becomes negative. Suppose 10 terms are there, then n will be 10, then this become plus, and so on. This depends upon n. So this result is called relation between roots and coefficient. It is very simple to remember. एक एक का सम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अल्फा n माइनस सेकेंड कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट, दो का सम थर्ड कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट, तीन का सम फोर्थ कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट, लास्ट में सबका प्रोडक्ट लास्ट कांस्टेंट टर्म ए एन बाई ए जीरो, अल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस लास्ट विल डिपेंड्स अपॉन एन. तो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर. पहला एक एक का सम होता है a1 बाई a0, दो का सम जो होगा a2 बाई a0, तीन का सम a3 बाई a0, चार का सम a4 बाई a0, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन होगा, और लास्ट सबका प्रोडक्ट होगा an बाई a0, आगे में होगा माइनस 1 टू द पावर n. मीन्स दिस डिपेंड्स अपॉन n. n क्या है उसके ऊपर इसका साइन डिपेंड करेगा. ओके, तो दिस इज फॉर an equation of degree n. Now we see what will be the result for a quadratic equation, for a cubic equation. ये तो nth के लिए था जनरल. Let us see. Now for the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. Ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation. For this equation what will happen? This is a quadratic equation, so it will have two roots. दो रूट होगा आपका. So let the roots are alpha and beta. दो रूट होगा तो अल्फा 1 अल्फा 2 ले सकते थे या अल्फा बीटा ले लिए, एक ही बात है. Then what will be their sum? अल्फा प्लस बीटा. क्या होता था उसमें, एक एक का सम माइनस सेकेंड कोफिशिएंट बाय फर्स्ट कोफिशिएंट. समझ गए? सेकेंड कोफिशिएंट इज बी, फर्स्ट कोफिशिएंट इज हियर ए. ओके, सी हियर सम ऑफ रूट्स माइनस सेकेंड कोफिशिएंट बाय फर्स्ट कोफिशिएंट. समझे? नाउ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू, दो का प्रोडक्ट का सम, तो यहाँ दो ही तो है, तो यही हो गया लास्ट. दो का प्रोडक्ट का सम माने दो ही तो है, अल्फा और बीटा, तो यही हो गया प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस 1 टू द पावर n और लास्ट कांस्टेंट टर्म बाय फर्स्ट टर्म.
ये था ना, -1 to the power n कांस्टेंट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ये था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। हियर n इज योर 2, सेकेंड डिग्री का है ना, 2 रूट्स है, तो n इज 2, c by a, so it is simply c by a. So in case of quadratic equation, sum of roots, this is called quadratic equation. In case of quadratic equation, sum of roots minus b by a, product of roots c by a. Now for cubic equation, let us take ax cube bx square cx plus d equal to 0. It is a cubic equation, so how many roots will be there? 3. क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होगा। लेट अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स, ये मान लीजिए इसका रूट्स है। देयरफॉर व्हाट विल बी सम ऑफ रूट्स? माइनस होता है सेकेंड कोफिशिएंट बाय फर्स्ट कोफिशिएंट, सिंपल। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो का प्रोडक्ट, क्या क्या दो का प्रोडक्ट होगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा, बस और तो कुछ नहीं होगा। 3 है ना अल्फा बीटा गामा, तो दो का प्रोडक्ट का सम है ना, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा, बस ये 3 दो का प्रोडक्ट का सम होता है, प्लस थर्ड कोफिशिएंट बाय फर्स्ट कोफिशिएंट c बाई ए। पहला माइनस होता है, फिर सेकंड प्लस होता है, फिर 3 का प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा 3 ही तो है इसमें, तो 3 का प्रोडक्ट का सम माने ये, बस इतना ही, तो ये हो गया प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट होता है -1 to the power n, n मीन्स हियर 3 कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म a, so this will be minus d by a, -1 cube is minus d by a. So in this way that general formula can be reduced for quadratic, for cubic, 4th डिग्री का है तो इसके हिसाब से फिर लिख सकते हैं, ठीक। रूट्स का सम माइनस सेकेंड कोफिशिएंट बाय फर्स्ट कोफिशिएंट, दो का प्रोडक्ट का सम c बाई ए, 3 का प्रोडक्ट का सम d बाई ए, अल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस पर एक सम बनाते हैं, दैट विल क्लियर ऑल द रिजल्ट्स। एक सम आप बढ़िया से समझ लीजिए। One problem will clear all the results. आप एक सवाल लिखिए, solve your question is a very good question collected. X cube minus 7x square plus 36 equal to 0. Solve means find its solution. Find its solution means find the value of x. Find the value of x means find its roots. एक ही चीज है, find its roots, find its solution, find the value of x from here, ठीक है। given that, ये दिया हुआ है, given that one root is double of another, ये चीज एक दिया हुआ है कंडीशन कि इसका एक रूट एक किसी दूसरे रूट का डबल होगा। इसका रूट्स निकालना है, इसमें 3 रूट्स होंगे बिकॉज इट इज ए इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, तो 3 रूट में से एक रूट किसी दूसरे रूट का डबल होगा। ये एक क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेट 3 रूट होगा, लेट अल्फा बीटा गामा आर दी 3 रूट्स,
3 रूट होगा, मान लिए अल्फा बीटा गामा 3 रूट से, वेयर वहाँ हम लोग ये भी मान ले रहे हैं एक रूट दूसरे का डबल होगा। मान लीजिए एक रूट जैसे बीटा है, ये अल्फा का डबल है, कोई एक रूट किसी दूसरे रूट का डबल होगा। आप ले सकते थे अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, आप लिख सकते थे बीटा इक्वल टू 2 गामा, गामा इक्वल टू 2 अल्फा, कोई भी एक रूट दूसरे का डबल होगा। चलिए हम लोग ले लिए बीटा डबल है अल्फा का, तो ये आपका एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? ये क्या हुआ? इसका 3 रूट है, ये रूट का सम हो गया। तो रूट का सम हम लोग अभी पढ़े हैं माइनस सेकेंड कोफिशिएंट बाई फर्स्ट कोफिशिएंट। जरा एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो आपका इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, आपको पहले इसको ऐसे लिख लेना है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 36 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाला टर्म मिसिंग है, x टर्म मिसिंग मीन्स इट्स कोफिशिएंट इज 0, देन कांस्टेंट टर्म। इस तरह से उसको डिक्रीजिंग ट्रेंड में हम लोग लिख लेंगे। जैसे क्यूबिक है तो क्यूब फिर स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, फोर्थ है तो पहले फोर्थ फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर x फिर 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको उस तरह से लिख लेंगे, उसका कोफिशिएंट 0 करके। तो सम क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म हियर? ये है सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट -7, और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया सिंपली 7, माइनस माइनस प्लस हो गया। दो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये हुआ ना दो का प्रोडक्ट का सम। माइनस हुआ फिर प्लस होगा, थर्ड कोफिशिएंट बाय फर्स्ट कोफिशिएंट, दिस इज थर्ड कोफिशिएंट बाय फर्स्ट कोफिशिएंट, ऐसे। तो आपको इस फॉर्म में लिखना जरूरी था। अब 3 का प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा 3 ही तो है, तो 3 का प्रोडक्ट का सम माने तीनों का प्रोडक्ट हो गया। तो ये होगा लास्ट जो प्रोडक्ट होता है -1 टू द पावर n कांस्टेंट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, -1 का क्यूब माइनस, तो ये हो जाएगा -36। समझ गए बात? तो ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 4। ये सब रिजल्ट का यूज करके, बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों को निकालना है। देखिए कैसे। देखिए आप देखिए, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को देखिए तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा के जगह पर लिख सकते हैं 2 अल्फा। इन प्लेस ऑफ बीटा इफ यू राइट 2 अल्फा देन 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 7, ये आपका बन जाएगा 5 नंबर। ये बीटा के जगह पर 2 अल्फा लिख दिए तो 3 अल्फा प्लस गामा हो गया। ठीक है, फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से देखिए तो क्या हो सकता है? इसको और इसको, मतलब बीटा की जगह पर 2 अल्फा लिखना चाह रहे हैं। ये 3 था ना अल्फा बीटा गामा, उसमें बीटा को हटा दिए, अल्फा और गामा में ले आए। यहाँ भी बीटा को हटा देंगे, अल्फा और गामा में ले आएंगे। ये है हमारा टारगेट। बीटा की जगह पर लिख देते हैं 2 अल्फा, तो बीटा की जगह पर 2 अल्फा लिखेगा तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा स्क्वायर। क्लियर? बीटा की जगह पर 2 अल्फा, तो 2 अल्फा गामा, 2 अल्फा गामा
ये तो ऑलरेडी अल्फा गामा है, लेट इट बी अल्फा गामा, एंड दिस साइड इक्वल टू 0, लेट इट बी 0. Okay, now this can be written as 2 alpha square, 2 alpha gamma plus alpha gamma, 3 alpha gamma equal to 0. One thing more you can do, you can take one alpha common. एक अल्फा कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 2 अल्फा प्लस 3 गामा. नहीं, एक अल्फा कॉमन हो गया, उसको उधर कर देंगे तो 0 बाई अल्फा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0. इसको ले लीजिए 6. समझ गए? यहाँ एक अल्फा कॉमन ले लिए, कॉमन लेके उधर 0 है तो उधर ले जाएंगे तो 0 बाई अल्फा होगा, कैंसिल. सो 2 अल्फा प्लस 3 गामा इक्वल टू 0. ओके, हियर व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्राइड टू रिप्लेस बीटा को हटा दिए हैं इससे, 2 अल्फा लिख करके इसमें और इसमें, और दिस इज एन इक्वेशन इन टर्म ऑफ अल्फा एंड गामा, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन इन टर्म ऑफ अल्फा एंड गामा. नाउ बाय सॉल्विंग दीज टू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड गामा, एंड आफ्टर फाइंडिंग अल्फा एंड गामा यू कैन फाइंड बीटा ऑल्सो. सो नाउ let me rough this part. Now we take these two equations from 5 and 6. We write from 5 and 6. What will happen? 5 is your 3 alpha plus gamma equal to 7. This is your 5, and 6 is 2 alpha plus 3 gamma equal to 0. We have to solve. Try to make the coefficient of gamma same. Gamma का coefficient here 3, here 1. So try to make them same. So what will you do? Multiply by 3. 3 से multiply कर दीजिए. 9 alpha plus 3 gamma इक्वल टू 9, 3 से मल्टीप्लाई किया ना तो 3 इंटू 7 21, एंड राइट दिस 2 अल्फा प्लस 3 गामा इक्वल टू 0. ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय 3. नाउ सबट्रैक्टिंग, अब घटा दीजिए. This will be minus, this will also be minus. Now 9 alpha minus 2 alpha, 7 alpha, and 3 gamma minus 2 gamma, cancel. 21 minus 0, 21. So what will be alpha? 21 by 7. Alpha हो गया आपका 3. Now we can substitute this value of alpha either here or here to get gamma. So you will write from 5, यहाँ से what will be gamma? Gamma निकाल लीजिए. Gamma will be 7 minus 3 alpha. 7 minus 3 alpha, alpha means 3. 7 minus 9 minus 2. So alpha is 3, gamma is minus 2. Also from 1, एक नंबर में देखिए यहाँ बीटा इज 2 अल्फा, बीटा इज 2 अल्फा, 2 अल्फा मीन्स 2 into 3 equal to 6. So in this way we have got alpha 3, beta 6 and gamma minus 2. These are the 3 roots of this equation. So in this way, by using this relation between roots and coefficient, we can find the roots of a cubic equation. Similarly, we can find roots of a quadratic equation. We can find roots of a equation of degree 4. Let us see one problem based on quadratic equation. Generally in your book it is given equation
quadratic equation and cubic equation. So this was an example of cubic equation. Few more examples we solve. Let us see one problem based on quadratic equation. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप देख लो. देखिए कहीं अगर लिखने छूट जाता है तो आप वीडियो को रोक के भी आप उसको लिख सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं देते हैं लिखने के लिए, वीडियो लंबा हो जाएगा. आप वीडियो को पॉज में करके लिख सकते हैं. सॉल्व एक क्वाड्रेटिक का बनाते हैं. सॉल्व, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सॉल्व, या देखिए सॉल्व और क्वेश्चन में भी लाइक दिस, सॉल्व और फाइंड द रूट्स, सेम थिंग. सॉल्व और फाइंड द रूट, सेम थिंग of the equation let us take an equation x square plus 7x square plus 7x plus 12 equal to 0. इक्वल टू 0 कर दिए तो इक्वेशन बन गया. अगर रहता कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 तो हम लोग लिखते फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. पोलिनोमियल रहता तो बोलते फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. इक्वेशन है तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको सॉल्व करना है, इसका रूट्स निकालना है. ठीक है. इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस मच इक्वल टू रिटर्न, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाउ मेनी रूट्स इट विल हैव? 2 रूट्स होगा बिकॉज इट्स डिग्री इज 2. So you will write let alpha beta are the roots. इसका रूट्स मान लीजिए अल्फा और बीटा, दो तो है. That you have to calculate. Therefore, what will be their sum? As we know, minus coefficient of second term by coefficient of first term. What is coefficient of second term? Coefficient of first term, x square का coefficient, that is 1. So it is simply minus 7. Understand? Now sum of the product of 2, दो का प्रोडक्ट का सम, तो यही तो प्रोडक्ट हुआ, 2 है तो बस इतना ही लास्ट. So this will be minus 1 to the power n. n means here 2. Second degree equation, 2 roots are there. Constant term by coefficient of first term. Minus 1 square is plus. So it is 12. So we are getting alpha plus beta minus 7, alpha into beta 12. What you have to do here? You have to find alpha and beta. देखिए अल्फा प्लस बीटा है आपके पास. अगर अल्फा माइनस बीटा होता तो फिर दोनों को जोड़ के घटा के अल्फा बीटा निकाल लेते. ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे अब वही जिसका जरूरत है, अल्फा माइनस बीटा. How you will find alpha minus beta? You have to find alpha plus beta whole square. Can be written as alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta. देखिए a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. नहीं, आप इसको लिखिए a माइनस बी होल स्क्वायर. सो a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बट हियर इट वाज प्लस, सो यू विल राइट प्लस 4ab. देखिए इसको तोड़िएगा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab. So a plus b whole square can be written as a minus b whole square plus 4ab. Similarly, a minus b whole square can be written as a plus b whole square minus 4ab. इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 4ab.
दिस बिकम माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर. So a plus b whole square can be written as a minus b whole square plus 4ab, and a minus b whole square can be written as a plus b whole square minus 4ab. Okay, so this is used, this second one is used, second wala use hua. Alpha plus beta we have minus 7 its square minus 4 alpha beta 12 minus square plus 49 and this is 48, so 1. So what will be alpha minus beta? 1 इसका रूट होगा 1. So take it equation number 1, इसको ले लीजिए equation number 2 and take this is equation number 3. Here alpha plus beta is minus 7, alpha minus beta is 1. So by solving 1 and 3, can you find alpha and beta? Now by solving equation 1 and 3, we will try to find alpha and beta. देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है, आपको अल्फा बीटा निकालना है. क्या कीजिएगा? From 1 and 2 you will write, from 1 and 2. देखिए तो क्या कर सकते हैं, 1 और 2 से दोनों को ऐड कर दीजिए ना, इसको ऐड कर दीजिए तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, 2 अल्फा हो जाएगा. एंड दिस साइड माइनस 7 एंड प्लस 1, व्हाट विल बी माइनस 6. सो व्हाट विल बी अल्फा minus 3. Now take any equation 1 from 1, what will be beta? Beta will be minus 7 minus alpha. यहाँ से निकाल लीजिए. So it is minus 7 minus alpha, alpha means minus 3, minus plus. So what will come? Minus 4. So roots of this equation will be minus 3 and minus 4. So in this way we can solve whether it is quadratic polynomial or polynomial of degree 3, maybe degree 4, by using this relation between roots and coefficients of a polynomial. So this result was very important, as well as problem based on these results. We solve more problems based on relation between roots and coefficient. इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल बनाएंगे ये रूट्स और कोफिशिएंट से रिलेटेड. देन आफ्टर वी स्पेशली स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, इसका अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वी रीड इन डिटेल अबाउट quadratic equation also. Okay, so in the next video let us see few more problems. Go on watching polynomial. Thank you for watching.